पहले लिस्ट इन प्रोलॉग करते हैं और फिर फैमिली प्रोग्राम करते हैं। मुझे टाइम लगेगा तो मेरे साथ मतलब आप लोग कोप अप करते रहना। सब लोग अपना SWI प्रोलॉग ऑन रखें, ठीक है? हम लोग कर रहे थे। Yes, ma'am. ठीक है। See, now we are learning a new type to store the data, and that type is list. So now we are going to store the data today in the form of list. Lists are very popular, which are very similar to the arrays. See, in Python, you must have thought that the concept of arrays got replaced with the list. Okay, so storing the values as a sequence of values, list elements, and separated by the commas that you would have seen in Python. So same thing is over here. But the fact is that this language came first and then after Python. So the concept of list is actually the from this particular programming languages that was taken into that language. So list, we know that it is going to collect values, it is going to store values, data in the form of elements. Here you can store of any type. A list can have character, string, real, integer data as collection. तो एक लिस्ट के अंदर आप स्टोर कर सकते हो इंटीजर, कैरेक्टर, string, real values, and that it will accept. Okay. List can have zero number of elements also. In Prolog, the list can have zero number of elements also. See, here the list will be enclosed within the square brackets. See, for example, dog, cat, fish, and human. So in list in Prolog, this dog, this first element of the list is called head of the list, and the rest of the elements are called tail of the list. So the first element over here is head of the list, and the cat, fish, and human, these are called tail of your particular list. Okay, so a list with zero element, it is known as empty list. First element of list will be known as head, and the remaining elements, okay, would be called as tail. So for that example, we have head as dog, cat, fish, and human as tail. So how to create a list in Prolog? See a query over here, I'm writing it. See, from this PPT, you can have the queries, okay? So see, X is alpha is stored into X, 27 is stored in Y, and Z itself is a list, alpha, beta. And then I'm writing list is. So the list I'm compiling it is X, Y, Z. So we get a final answer over here. Our list is alpha, comma 27, then itself a list. So X, Y, Z. That's it. So this is how you can create a list in Prolog. Now, first of all, perform this query along with me. And notify me as early as you can. हो गया? कौन नोटिफाई करेगा आप में से? मैं उसका आंसर कंसिडर करूंगी. यूजुअली इस बैच में से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं
पार्थ भी करता है। कौन करेगा? पार्थ पटेल करेंगे रिस्पॉन्ड? मैम हम हेलो मैम, ये जो नेस्टेड लिस्ट होता है उसमें हम कितने एलिमेंट तक नेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेस कैसे करेंगे बाद में? उसके लिए आप क्या कह सकते हो कि आप पर्टिकुलर वो वैल्यू मतलब राइट करवा सकते हो, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको एक्सेस करवाना हो तो उसके लिए आपको पास करना पड़े वो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? आगे आएगा आपको एक्सेस करना हो ओके तो। कौन रिस्पॉन्ड करेगा कि हो गया है? ये कौन बोला था? किसने इतना मस्त इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया मुझे? मैम, इरफान 151। ओके इरफान, आप हर बार रिस्पॉन्ड करोगे अभी, ठीक है? ठीक है मैम। हम्म। हो गया है ना? तो मैं आगे कराऊं ना? यस मैम। ठीक है। सी देयर इज नो लिमिट कि आप लोग कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर, ठीक है? बट व्हाट यू कैन डू इज दैट इफ यू डोंट वांट टू फिक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द list, then we can add this as many as number of elements we want to using cons notation in Chrome. It is represented by the vertical bar. Basically this is a constructor and this will make you add elements into your list. For example, see the first here is that I am only having alpha, then I am adding beta, gamma, delta list using this vertical bar. And this vertical bar is nothing but the cons notation. That means the constructor is being called and the rest of the elements are added to the list. So I'm executing the one query. The rest of the queries you people need to execute. Okay. So this is your new list. First of all, only alpha, the head was there. Now using cons notation, we have added the beta, gamma and delta. So I would like you to execute all these queries and notify me. Ma'am, can you explain this again? See, this is the usage of cons notation over here, this vertical bar. Basically, this is like a constructor. If you don't want to keep your list to be the fixed number of elements, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे लिस्ट में सिर्फ 3 ही जाए और 3 के बाद मैं चौथा ऐड ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वर्टिकल बार के पीछे जो भी एलिमेंट्स लिखोगे वो सारी आपके लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। बेसिकली ये जो वर्टिकल बार है वो है कॉन्स नोटेशन, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसकी वजह से आपके बीटा गामा डेल्टा सारे आपकी जो लिस्ट है ओरिजिनल लिस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओरिजिनल लिस्ट सिर्फ अल्फा है क्योंकि देखो ओरिजिनल लिस्ट में अभी ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, बट बीच में मैं एक कॉन्स नोटेशन का यूज करके ये बीटा गामा डेल्टा ऐड करवा रही हूँ। तो नाउ मेरा लिस्ट जो होगा वो कंबाइंड होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा उस तरीके से। Okay, ma'am. Got it.
क्वेरीज राइट करके। हो गया ना? Yes, That, ma'am. let's go for new thing. See, this is right all predicate. Okay. This is not Ilgrin predicate. I'm writing it. So if you want the all the elements of your list to be listed out, okay, then you can use this kind of predicate. So I will edit in this particular list only. So you get to know that's how I'm doing it. I will explain. See, here the concept of recursion is again used. So first predicate that you see, write all empty list. Okay, that is a base condition. Second one, the second clause is of rule type. So write all. A represents head and L represents tail. So what we are writing, head and then a new line. Then what we are going to do, call write all. But now in write all, what we are passing, the passing as list, the tail of the list. Okay, I'm saving this, consulting this one. I will trace it out for you. Trace. Query will be here. So write all in lab. Write all. First call is being made to it. Next call, write alpha. Why write alpha? Because the second goal was here, write A. That means head of the list is being written. Then what is done? Alpha is written. Then न्यू लाइन कॉल हुआ, उसके बाद राइट ऑल वापस से कॉल हुआ, पर पास क्या हुआ इस बार, टेल ऑफ द लिस्ट. ओके, सो नाउ दिस राइट ऑल विल बी कॉल्ड फॉर दिस न्यू लिस्ट. ये पहले प्रोग्राम को समझना, क्योंकि बाकी सारे प्रोग्राम में मैंने जो भी प्रेडिकेट्स लिखे हैं वो इस रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज करके ही लिखे. ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट ऑल, ठीक है, तो राइट ए वो वाला गोल सेटिस्फाई हुआ, फिर न्यू लाइन वाला सेटिस्फाई हुआ और फिर राइट ऑल कॉल होता है. अब इसमें पास क्या हो रहा है, नया लिस्ट. नया लिस्ट में क्या जा रहा है, टेल ऑफ द लिस्ट. तो हमने देखा टेल ऑफ द लिस्ट अल्फा जो हेड था और बाकी सारे एलिमेंट्स टेल, तो अब सिर्फ टेल पास हो रहा है. अब राइट ऑल उसके लिए कॉल होगा. अब राइट ऑल कॉल हुआ है तो हेड कौन होगा, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो दिस इज अ स्ट्रिंग हेड है आपका. न्यू लाइन कॉल होना चाहिए उसके बाद, और फिर नया लिस्ट 20 A B C. इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स लिख लो. तो ये इनबिल्ट प्रेडिकेट नहीं है, अपने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, सो राइट डाउन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट ऑल, that means it will write all the elements that are present in your list.
नोटिफाई करना ये लिख के क्या है, ठीक है चलो नेक्स्ट थिंग करते हैं, रिप्लेस। ये भी इनबिल्ट प्रेडिकेट नहीं है, आई एम राइटिंग दिस प्रेडिकेट, ओके। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। ये पर्टिकुलर प्रेडिकेट यहाँ पे लिखा है रिप्लेस। पास क्या कर रही हूँ पैरामीटर्स के तौर पे, लिस्ट विथ हेड एंड टेल, ओके। लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट एज हेड एंड द रेस्ट एज टेल। रिप्लेस क्या कर रही हूँ, हेड विद द दिस पर्टिकुलर हेड विद दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, ओके। तो इसको सेव कर रही हूँ। कंसल्ट करते हैं, क्वेरी क्लोज करते हैं। हो गया। फर्स्ट हमने पास किया था क्या, 1 2 3 4 5, ओके। और हमें एक नया लिस्ट चाहिए एल। तो अब हमें एल जो मिला वो रिप्लेस 1 की जगह पे रिप्लेस हो गया 10। अब अगर पर्टिकुलर एलिमेंट आपको रिप्लेस करना हो तो उसके लिए थोड़ा 3-4 प्रेडिकेट्स का लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं कि हेड और टेल में सेपरेट कर देते हैं रिकर्सिव कॉल्स करके, और फिर एलिमेंट रिप्लेस करते हैं। ये सेकंड क्वेरी आप फायर करोगे जो रिप्लेस वाली है, आपको आइडिया आ जाएगा। डन है। Next is membership in list, okay. What if I need to check that this particular element is my member is present in list or not, okay. So I will fire a query, and this is inbuilt predicate. Member is inbuilt predicate, so we just we can write it in this particular. Yes, we get true. A is member of A, B, and C. Practice out for this 1, 2, and 4 queries, and then let me know. मैं आपके लिए क्वेरीज लिख देती हूँ, तो मुझे नोटिफाई करना जब आपका हो जाए तो।
नहीं, लास्ट वाली क्वेरी तो हमको वो लिस्ट के सारे एलिमेंट देगा ना। तो इसमें हमने ऐसा बोला कि वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, पर इसमें वो मतलब कंपेयर तो वैसे वेरिएबल एक्स वो लिस्ट में है नहीं, वैसा तो देख नहीं रहा। एक मिनट, कौन से वाले में बोल रहा हूँ? एक्स ए बी सी फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। एक्स यहाँ नहीं पे तो स्मॉल में रखो, तो मैंने गलती से कैपिटल में रख दिया होगा। कैपिटल होगा तो वो पूरा एलिमेंट सब देगा। कहाँ से पूरा देगा? एक मिनट। वो सारे मेंबर्स आपको लिस्ट आउट करके देगा। एक्स को वेरिएबल के तौर पे लिया है, अगर आप उसको स्मॉल कर दोगे, ठीक है, तो वो फॉल्स देगा। यस मैम। ठीक है, तो फिर मैंने शायद से गलती से कैपिटल लिख दिया होगा, तो वो आपको सारे मेंबर्स देगा। अगर आपको चेक करना है कि एक्स मेंबर है या नहीं, तो फिर स्मॉल में। બધા જાગ્યા છે આજે એમ ને? गुड आफ्टरनून। डन मैम। डन ना, नेक्स्ट। બધા જાગ્યા છે આજે એમ ને? मेंबरशिप हो गया, लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये भी इनबिल्ट प्रेडिकेट है, इट विल फायर, यू विल गेट अ लेंथ ऑफ द लिस्ट। So these are the queries for you. Example try करो।
डन। Reversing a list. Inbuilt predicate, reverse. See here you get a reverse list. Inbuilt predicate. Okay. So it will reverse and give you a reverse list. Practice it out rest of the 4 queries. Notify me. Done, students? यस मैम डन। ठीक है। फिर now comes delete. See, this is not inbuilt predicate. These are the clauses I have written for it. Okay. So कंसल्ट करूंगी अब इसको। क्या किया है वो बता देते हैं। डिलीट फर्स्ट प्रेडिकेट। हम लोग सेपरेट कर रहे हैं हेड और टेल को। क्या पैरामीटर्स आप लोग पास कर रहे हो यहाँ पे? हेड, द होल लिस्ट एंड टेल। ठीक है। द सेकेंड वन इज अ रिकर्सिव कॉल। क्या जा रहा है, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट हेड, x represents head, then the second list which is head and tail, and the third is the new list. This t is the new list, head with new tail. And what you are deleting, which element you are passing to delete it. Okay, so this x would be deleted, the t as in whole list you are passing it, and this t1 is the new list what you are getting. If I will trace, then you people will know what happens. यहाँ पे समझो delete है, head one is the head,
सेकेंड हम पूरा लिस्ट पास कर रहे हैं और लास्ट में एक्स, आपको जो नया लिस्ट चाहिए वो, ठीक है। आप लोग अपने में ट्राई करो, तो मेरे में कुछ एरर आ रही है, मैं आपको दे रही हूँ ठीक है। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही मेरे में भी क्या प्रॉब्लम है। ये रन होता है, मैंने लास्ट बैच में करवा दिया है, अभी मुझे देखना पड़ेगा मेरे में क्या प्रॉब्लम है। आप लोग रन करके मुझे नोटिफाई करो तो। मैम इसमें आउटपुट सही नहीं आ रहा, मतलब वो वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर दे रहा है अंडरस्कोर वाला। एक मिनट, मेरा रन हो रहा है। मैंने एक्चुअली गलत फाइल में लिखा था और मैं कंसल्ट दूसरी फाइल कर रही थी, मेरा हो ही रहा है, आपको बताती हूँ। क्या हुआ, आउटपुट में क्या प्रॉब्लम आया? देखो मेरा जैसा आउटपुट आया है तो सही है। See, delete x1 is the element you want to delete. Then there is a list and then is a new list that you want to have. So this will make a call to this delete, okay? That is the first one. ये वाला, ठीक है, उसने कॉल लगाया ये x, then list divided into head and tail and this one. And at last what you are getting, okay, this element needs to be deleted from this list and this is your new tail. So as you will get this particular. ये आंसर नहीं आया आपका? मैम टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी, आ गए आप। Append next. If you want to add elements to the list, okay,
तो फर्स्ट पैरामीटर जो पास होता है, फॉर एग्जांपल इज माय एम्प्टी लिस्ट, मुझे उसके अंदर अपेंड करना है 1 2 3 एंड द लास्ट पैरामीटर कि आपका नया लिस्ट आपको क्या चाहिए वो इनबिल्ट प्रेडिकेट है, सो वी डोंट नीड टू राइट एनी कोड फॉर इट। इस तरीके से अपेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट है वो आपकी पुरानी लिस्ट है, सेकेंड पैरामीटर जो आपको अपेंड करवाना है वो है, और लास्ट पैरामीटर है जो आपको अपडेटेड लिस्ट चाहिए वो। ये सारी क्वेरीज प्रैक्टिस आउट करो। मैम ये थर्ड वाली क्वेरी हमको वो पूरा हर पॉसिबिलिटी प्रिंट करके देगा ना, L1 L2 की। L1 L2 मुझे याद नहीं है कि क्या देगा, मुझे पर रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, यस मैम। वो धीरे धीरे अपेंड कर रहा है, देखा आपने? L2 में से हर एक एलिमेंट L1 में जाएगा। डन मैम। नेक्स्ट, ये पीपीटी आपके साथ है ही, हाँ आपके क्लास में मैंने अपलोड कर ही दी है, तो आपको वहां पे ये पीपीटी मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है परम्यूटेशन का। अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, तो हर एक कॉम्बिनेशन जैसे 1x 2y ऐसा आपको परम्यूटेशन चाहिए लिस्ट में, तो आप लोग इस तरीके से ला सकते हो। जैसे कि 1 यहाँ पे 1 एंड 2 है, दो ही एलिमेंट्स है, तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं हमारे, 1 2 या 2 1, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। नीचे वाली क्वेरी फायर करोगे 1 2 3 तो आपको पता चलेगा। लिस्ट है वो इस परम्यूटेशन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे रूल m sort x s n sorted। ये क्या करेगा, x वाला जो आपका वैल्यू होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू जो आएगा x वाली, वो सॉर्टेड करेगा। m sort ये इनबिल्ट प्रेडिकेट है, उसका काम क्या रहता है कि लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो अगर आप x वाला लिस्ट डाल रहे हो तो ये m sort का काम ये रहेगा कि x वाले जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर, ठीक है। और ये m sort ys, तो ये क्या करेगा कि आपका जो लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट पास हो रहा है, उसको सॉर्ट करेगा। एंड दिस विल enable you to have the combination। बताती हूँ, फर्स्ट में नहीं पता चलेगा बाद में। आगे ईज लगा देना, ठीक है, अगर आप यही कर रहे हो।
ये आप यहाँ पे इज लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। और मैंने लास्ट टाइम रन किया था तब मैंने इज फॉर्मेटेशन यूज किया था, तब वो अलाउ कर रहा था। अब आज पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग रन करके देख लेना। So this will get you the particular combination. So first combination 1 2 हो सकता है, second combination 2 1 होगा। अगर आप ये क्वेरी फायर करोगे तो आपको 1 2 2 1 2 3 ये वाला मिलेगा। तो ये वाली क्वेरी फायर हो जाए उसके बाद मुझे रिस्पॉन्ड। डन मैम। एड एलिमेंट इन द लिस्ट, और ये लास्ट वन है। ठीक है, इनबिल्ट प्रेडिकेट नहीं है, लिखना है हमें। फर्स्ट हम लोग पास कर रहे हैं हेड, टेल और पूरा लिस्ट। सो फर्स्ट हमारा जो प्रेडिकेट है इट इज एक्टिंग लाइक अ बेस कंडीशन। ओके, सो और या तो फिर आप उसे ऐसे कर सकते हो कि उसमें 3 टाइप का जाएगा कि आपको बहुत सिंपल करना है। मैं एक एलिमेंट डाल रही हूँ, वो हेड है मेरे पास, टेल मुझे एंटर करवाना है। अब कॉन्स नोटेशन थ्रू आप सिर्फ उसको ऐड करवा रहे हो अपनी लिस्ट के अंदर, यानी कि एक्स मेरे पास है, एल है जो मुझे ऐड करवाना है। कैसे ऐड करवाऊंगा? एक्स के और एल के बीच में कॉन्स नोटेशन से आप उसको ऐड करवा रहे हो, इसका ये मीनिंग भी होता है। और दूसरा ये कि हम लोग इसको रिकर्सिव कॉल होगा हमारा जब तक एक बेस कंडीशन के तौर पे यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उसका कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तब होगा एज इन बेस कंडीशन। सेकेंड है ऐड लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट के ऊपर अगर आपको आपका पूरा टेल ऐड करना है, अब फर्स्ट लिस्ट कोई यूजर पास कर रहा है और वो एम्प्टी है, तो फिर जो भी पैरामीटर्स जाएंगे वो टेल लिस्ट ही होगा, तो टेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड द थर्ड इज कि आपका ऑलरेडी लिस्ट है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको कोई नया एलिमेंट ऐड करना है और आपको रिजल्टेंट ये एक नया लिस्ट L1। तो मेरा लिस्ट है जिसका हेड है जिसका टेल है, अब उसके टेल में जैसे कि L, उसमें मुझे ऐड करवाना है कोई एलिमेंट, और L1 वो मुझे चाहिए मेरा नया लिस्ट। उसके लिए यहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग एड लिस्ट कॉल करते हैं। एड लिस्ट में एक्चुअली में क्या जाएगा, हेड, फिर आपका जो आपको एलिमेंट जो ऐड करवाना है वो, और आपको जो नया लिस्ट चाहिए L1 वो। और L1 कैसे बनता है, कॉन्स नोटेशन थ्रू हम लोग ऐड करवा रहे हैं। ठीक, सो इस तरीके से आप लोग लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करवाए। जो सेकंड कॉल है वो रिकर्सिव कॉल जाता है। बस एक मिनट।
सो एड लिस्ट फर्स्ट है सिंपल, आप लोगों को जस्ट आपकी एक लिस्ट है, उसके अंदर एलिमेंट ऐड करवाना, एक नई लिस्ट चाहिए। सेकेंड, एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है तो। और तीसरी, जब आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करवाने हो तब। सो क्विक लिस्ट है। सेकेंड, जो आपको टेल यानी कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऐड करवाना है वो। और लास्ट में आपको एक नया लिस्ट चाहिए वो। ऐड यहाँ पे रिकर्सिव सॉरी ये कॉल जाएगा बेस कंडीशन को, ऐड यहाँ पे लिखा है, और ऐड लिस्ट वो रिकर्सिव कॉल है। इसको मैं पहले सेव करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग क्वेरीज है प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं बेसिक वेरीफाई करूँगा, ठीक है, आपको पता चले क्या हो रहा है। एड लिस्ट है, एड लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करवाना है x और मुझे चाहिए नई लिस्ट a, ठीक है। हो गया आपका ऐड x, ठीक है, और a आपका नया लिस्ट आ गया। अब ये क्वेरीज आप प्रैक्टिस कर लो, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ना हो तो एक बार जरा देख के बोल दो ना कि आपके पास ये पीपीटी है या नहीं। फिर मैं वो इन्होंने जो इरफान ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसके लिए मुझे क्वेरी लिखनी है, फाइंड nth एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट वाली। तो तब तक आप ये प्रैक्टिस करो। इन द मीन टाइम मैं आपको वो वाला भी दे देती हूँ, फाइंड nth एलिमेंट इन द लिस्ट का क्वेरी लिख के। है आपके पास पीपीटी? बोलो तो सही हाँ या ना। क्लास फाइल में मिली आपको ये लिस्ट इन प्रोलॉग वाले पीपीटी मेरी? यस मैम। हाँ ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करो, फाइल वर्क करो, स्क्रीनशॉट्स लगाओ। आपका प्रैक्टिकल है पूरा ये लिस्ट वाला, वो रेडी हो जाना चाहिए, वो फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए आज। हाँ मैं आपको 3:15 को रिलीव कर दूंगी ताकि आप लोग 3:30 को वो इंटरैक्शन से पहले अच्छे से फ्री हो जाए, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तो 3:15 को मैं आपको रिलीव कर दूंगी। अब 15 मिनट है तो 15 मिनट में काम कर लो इतना। एलिमेंट इरफान यस मैम, यस मैम। एंड 0 इंडेक्स पास करो पहले, ठीक है। लिख दो चैट में। ये हो गया आपका डाउट सॉल्व? यस मैम। ठीक है, आपका हो गया। अब किसी और को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर आप लोग सब ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। मैं माइक म्यूट कर रही हूँ। 3:15 को मैं अटेंडेंस लूंगी, तब आप लोग यहाँ पे रहना, ठीक है। अब तक आप ब्रेक लेके फ्रेश होना चाहते हो, फाइल तो नेक्स्ट वीक दिखाओगे तो चलेगा, तो आधा घंटा फ्रेश हो जाना, फिर टीपीआर के साथ इंटरेक्ट कर लेना। डन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, मैं म्यूट कर रही हूँ। मैं 3:15 को अटेंडेंस लूंगी और 3:30 को मीटिंग ऑफ भी कर दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।